So during this class, I would be covering the current status of organic farming in India as well as at the global level, objectives and importance of organic livestock farming, principles of livestock farming, opportunities and problems of organic livestock farming in India. So now let us see what exactly organic livestock farming. Now here is the actual topic which we are going to discuss on the organic livestock farming. Okay. So this organic livestock farming promotes the use of organic and biodegradable inputs from the ecosystem in terms of animal nutrition, animal health, animal housing and breeding. ये definition already हमने शुरुआत में दे दिया. If you're able to recapitulate, this definition already we have given. Okay. So here the major input is nutrition. That's the first and foremost constraint or dependent factor is the animal nutrition, because it should be organically grown, good quality fodder, species specific. Okay. Of course, animal health आएगा तो most of the situations जब आप indigenous breed maintain करेंगे तो health will be automatically well taken care. Okay. Of course, housing is not a much issues here. Principles of organic agriculture. So now another topic, principles of organic agriculture. It can be organic or livestock also, but principles remain same. But this is again an important question to be asked in the exam, if not in our exam, at least in the external exam. Okay. The principles of organic agriculture includes health, ecology, fairness and care. मीन्स जो भी ऑर्गेनिक लाइवस्टॉक फार्मिंग आप प्रैक्टिस करिए या आप एग्रीकल्चर फॉलो करिए, यू शुड मेक श्योर दैट health status of the soil should be maintained. It should be ecologically suitable. You are going to take care of the nature, and also your decisions will be naturally good decision or fair decision. That I will be taking in examples. Then you will understand better. Okay. First one is principle of health. Organic agriculture should sustain and enhance the soil health, plant, animal, human and planet as one and indivisible. Agriculture, organic agriculture करने से first principle you are going to meet out is principle of health with respect to soil, plant. मतलब आप अलग अलग नहीं कर सकते. मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एनिमल का नहीं है. एनिमल की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, प्लांट का नहीं है. वो नहीं कर सकते. So in order to meet this principle, the only way is to avoid use of fertilizers, pesticides and drugs for the animals or feed additives to the animals. Okay. Principle of ecology में क्या होगा? So it is naturally based on the living ecological systems and cycles, which will emulate them and help in the sustaining the nature. Okay. For which you should make sure that whatever you do, it suits to the landscape, it suits to the climate, it suits to the habitats, it suits to the biodiversity. कहने का मतलब है जैसे मुर्रा है, मुर्रा का बेल्ट आपको पता है what are the belt, but if you're trying to rear this murra in the southern India, which is not acceptable. ठीक है. So you know that Jamnapari is from the typical northwestern climate. उसको आप सदर्न स्टेट में आप रेयर कर रहे हैं, which is not acceptable. सिमिलरली आपका कोल्ड कंट्री में जो रेयर करने वाला ब्रीड्स को आप सदर्न स्टेट में आके रेयर कर रहे हैं. सो दे आर ऑल अगेंस्ट द नेचर, क्योंकि उनका हैबिटेट में वो चीज नहीं होता है, उस क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, उस लैंडस्केप सूटेबल नहीं है. आप देखिए माइग्रेटरी पॉपुलेशन शीप राजस्थान में एग्जिस्ट करता है, एंड इफ यू एक्सपेक्ट, इफ यू ब्रिंग सच ब्रीड्स हियर एंड इफ यू ट्राई टू कीप देम इन ए लिमिटेड हाउस और इंडोर सिस्टम, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड. ओके. सिमिलरली प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस. फेयरनेस मींस दैट शुड सी द सोशल कास्ट आल्सो. सोशल कास्ट मतलब जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि एक नेचर में रोड बनाना है, ठीक है. In order to make a road, you are going to destroy the forest, you are going to destroy the lake beds, you are going to destroy the many other things. Okay. But road बनना है. So in that case, you should also see that environmental cost के साथ social cost भी देखना है. So you are going to make a pros and cons by making a road. अगर आपको लग रहा है चार चीज इससे वेस्ट हो रहा है, बट ये एक बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से बहुत सारे चीज कंपनसेट कर रहा है. इफ यूर वन
positive point is overwhelming the 3 negative points, then that is called principle of fairness. आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारे चीज आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे, इट इज एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड इफ इट इज ए फेयर, इफ इट इज ए सोशल फैक्टर इज इन्वॉल्व. ठीक है, मीन्स दैट इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इफ दे थिंक दैट even though their yield is less, even though their product demand is very less in the local area, but still it take care of their social factors. If they are happy with that, then don't try to introduce any other product or produce in that area. That's called social cost. Okay. Principle of care. Principle of care, अगर आपने destroy भी कर दिया, you should also make sure you are going to compensate with something else. जैसे रोड बनता है, बहुत सारे ट्रीज को काटना पड़ता है, तो उसका कंपनसेशन क्या है? एज पर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो कहते हैं अगर आप 10 प्लांट काट दिए तो आप 100 प्लांट प्लांटेशन करना है जहां एम्प्टी स्पेस है, ताकि यू आर गोइंग टू मेंटेन दैट बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो सिमिलरली हियर प्रिंसिपल ऑफ केयर, एनीथिंग यू आर गोइंग टू डू फॉर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर for that matter, you should also compensate with something else. These are called principles for the organic or livestock farming system. Okay, same thing if you take care of livestock, here the things are little different. Land based activity, वहां क्या साइल हेल्थ था, यहाँ एनिमल हेल्थ आएगा. Okay, or the breeds which are suitable to that land, okay, you will do it. Okay, good animal health and welfare, वहां क्या आपका एनवायरमेंट हो गया, लोकल बायोडाइवर्सिटी हो गया, यहाँ एनिमल हेल्थ आएगा. वहां प्रोडक्टिविटी के, यहाँ ऑप्टिमाइजेशन रेदर देन द मैक्सिमम प्रोडक्शन, आपको उतना ही प्रोड्यूस करो उसका कैपेबिलिटी है. डोंट ट्राई टू एक्सप्लॉइट, डोंट ट्राई टू एक्सप्लॉइट. लोअर स्टॉकिंग डेंसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं हम लोग. अगर आप ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक फार्मिंग करना है तो आपको पता है इस अवेलेबल लैंड में आपको लग रहा है मूल्य 100 कैटल कैन बी केप्ट विद द कैरिंग कैपेसिटी, then you should maintain 100 only. If you try to maintain, then over density होगा तो again exploitation of land, exploitation of nature, which is not acceptable. Okay. So then why organic farming? Okay. So this is another important topic. In addition to the all general discussions, then we are going to discuss the use of organic farming in different perspectives. Okay. With respect to consumer, with respect to producers, with respect to environment, with respect to the social benefits. Okay, let us take one by one. Okay, out of these four, what we discussed, okay, दो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जहां जिसके पास खाना नहीं है, पहले उसका पेट भरना जरूरी होता है. जिसके पास खाना सफिशिएंट है, वो यू विल थिंक ऑफ क्वालिटी फूड. जिसके पास क्वालिटी भी है, क्वांटिटी है, देन यू ओनली थिंक ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल बेनिफिट्स, जो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में होता है. ठीक है ना? सो दोज थिंग्स विच आर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल बेनिफिट्स एंड एनुअल बेनिफिट्स, मोस्टली दे आर डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, बट एनीवे एज ए ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम, व्हाट आर द एडवांटेज विथ रेस्पेक्ट टू कंज्यूमर्स? सो नाउअडेज the what you can say, the earning capacity has increased, upper middle class people have increased, people have become quality conscious. Okay, they feel that they can afford little more amount extra for the quality food and produce. Okay, so in that context, the people are so much concerned about the health issues. Okay, so with the modern farming produce, there is a more possibility of toxic food due to involvement of so many feed additives and hormones. Okay, so they will feel to purchase the organic products which are free from all these. Okay, whether it's a chemical, whether it's a any growth hormones or any antibiotics. Okay, though last point says that better taste and longer shelf life. Longer shelf life, of course, it is true. Okay, but in true sense, if it's a more organic, generally it's biodegradable. Means jaldi kharab ho jata hai because you not added any preservatives in that. Better taste, not sure shot. People say that organic foods are better tastier, but there is no full proof. Okay, but still, certainly you can feel that avoidance of any chemicals or any preservatives, naturally it should give more natural feeling than the adulterated foods. Okay, producers benefit. आपको देखिए कमर्शियल फार्मिंग में आपको आउटपुट इंक्रीज करने के लिए वी कीप ऑन एडिंग द इनपुट्स विच आर वेरी मोस्टली सिंथेटिक, क्योंकि आपको शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए.
क्विकली यू वांट टू हैव ए मोर रिटर्न्स, ओके। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम में क्या है, आपका ज्यादा इनपुट आप डाल नहीं सकते, तो नेचुरली आपका इनपुट कॉस्ट घट जाएगा। और इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसीजेस यू विल ट्राई टू हैव ए मोर ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स। तो नेचुरली आपका इंडिजिनस ब्रीड्स में क्या होगा, उनका सर्वाइबिलिटी वैसे ज्यादा रहता है, वैसे डिसीज रेजिस्टेंस होता है, दे आर लेस डिसीज प्रोन, सो आपका इनपुट कॉस्ट घट जाएगा। एडेड वैल्यू क्या है, सिंस पीपल आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा रेन्यूमरेटरी प्राइस, तो नेचुरली आपका कास्ट में पर लीटर में जो मिलता तो उससे ज्यादा मिलेगा। सो बेटर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स इट इज अंडरस्टूड। Environmental benefits, as I told you in the beginning itself, though in India, countries like India, developing countries, आप अपने लिए सोच के खरीदते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा प्रोडक्ट है, सो इनडायरेक्टली यू आर एनकरेजिंग दी ऑर्गेनिक लाइवस्टॉक फार्मर्स। तो ऑर्गेनिक लाइवस्टॉक फार्मर्स जब बढ़ेंगे तो नेचुरली दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय अवेयरनेस ऑफ ऑल दीस थिंग्स, ओके। आपका कंट्रीब्यूशन भले डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, but through organic farming naturally you're going to help in the conservation of the soil health, you'll reduce the water pollution, it will be more climate friendly, and it will naturally maintains the biodiversity in the local environment and discourages the GMO organisms. Social and economic benefits, it helps in the employment opportunities, क्योंकि यहाँ मैकेनाइजेशन ज्यादा नहीं होगा। मैकेनाइजेशन ज्यादा होते ही क्या होगा, तो आपका मैन पावर का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, सिंस मेनी थिंग्स हैज टू बी डन मैन्युअली, क्योंकि यहाँ कंबाइनर आप यूज नहीं कर सकते, फॉडर हार्वेस्टिंग मशीन यूज नहीं कर सकते, मेनी थिंग्स सिंस दे आर इनडायरेक्टली अवॉइडेड, तो नेचुरली मैन पावर ज्यादा जरूरत पड़ेगा। आपको पेस्टिसाइड्स यहाँ क्या है हटाने के लिए, तो यू आर गोइंग टू यूज द सम पेस्टिसाइड्स, बट यहाँ मैन्युअली वीडिंग करना पड़ेगा। जब मैन्युअली वीडिंग करेंगे तो आपका लेबर रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। जब लेबर आप रखेंगे तो उसका तनख्वाह देंगे, तो उनका लेबर वेलफेयर विल बी इनडायरेक्टली वेल टेकन केयर। एंड फूड सिक्योरिटी, सिंस इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स और डायरेक्ट कंज्यूमर्स, नेचुरली फूड सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। मिल्क होगा, सीरियल्स होगा, फ्रूट्स होगा, okay, you don't talk about the organic sugarcane production, but certainly first you'll talk about the organic cereal production, organic apple production, rather than any other commercial crops, okay. So since here the animals which you're going to be used are less exposed for the chemicals, so welfare of animal is also taken care. So that is use of organic farming with respect to consumer, producer, environment, and social. Okay, so that is another part. Another is, again, this is a part of your syllabus. Problems in developing countries with respect to organic animal husbandry. प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम है, हमने इतना सारा एडवांटेजेस बोल दिया, इतना सारे ये सब बदल दिए, बट व्हाट आर द रियलिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री in country like India, okay? In tropical countries, the constant efforts are being made to boost the organic production, but still the growth is less. The main reasons are as follows, okay? Even export bhi nahi kar pa rahe. These are 7 points which we will be discussing one by one. Lack of knowledge, small farmers or small farms, problems in livestock feeding, sanitary regulation, traceability, डिसीज, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट फैसिलिटी, ये सारे इनबिल्ट प्रॉब्लम्स है इन कंट्री लाइक इंडिया, ड्यू टू विच द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री इज नॉट अप टू द मार्क। लैक ऑफ नॉलेज, आप खुद ही देख लीजिए, सो वी टॉक अबाउट सो मच अबाउट अदर फार्मिंग सिस्टम, बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक लाइवस्टॉक फार्मिंग, वी ourselves don't know much about the information, what to talk about the farmers, isn't it? Because it's not frequently talked subject, it is less frequently talked subject, and it is a need based subject. अगर आपको करना है, आपको चाहिए, आप पढ़ो, आप जानो, it is not everyone's need, so that's why the information is somewhere hidden, it is not open to all, you may have to search it, okay? इसलिए इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो होगा, जो फार्मर के लिए चाहिए, वो इन डेप्थ जो भी अवेलेबल होगा, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश, ठीक है। थोड़ा बहुत है वो डेवलप कंट्रीज के हिसाब से है, अगर होगा बहुत सारे टिपिकल स्टैंडर्ड्स लैंग्वेज में है,
वो एक आम आदमी पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है. इवन इफ इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश. एंड दैट टू फॉर स्मॉल फार्मर्स इट इज नॉट एट ऑल एक्सेसिबल. ठीक है. सेकेंड, स्मॉल फार्म्स. क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, यील्ड ड्रास्टिकली कम हो जाता है, पहली बात. दूसरी बात है, आपका अपने प्रोडक्ट को डिमांड जो है सब जगह में नहीं है. आपके पास हाई थोड़ा सा, तो आप बेचने के लिए आप वेरी स्पेसिफिक मार्केट में जा नहीं पाएंगे, इमीडिएट परचेजर नहीं. ओके. सो द लैंडलेस एनिमल हस्बेंड्री विच इज कॉमन इन इंडिया, विच इज नॉट एनकरेजेस आर अलाउड फॉर द ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक. एंड ऑल्सो स्मॉल फार्म्स आर नॉट सूटेबल, क्योंकि जब बल्क प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट का सोच नहीं सकते. ठीक है. अगर आप प्रोडक्ट लाइक मिल्क भी अगर आपको बना के बेचने भी है, तो देर आर सो मेनी अदर इश्यूज, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम में आएगा, डेल्यूशन का प्रॉब्लम है, कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम है, ट्रेसेबिलिटी का प्रॉब्लम है. क्योंकि चार फार्मर्स को मिलकर अगर करना है, आप ठीक है, बट दूसरा फार्मर का वी डोंट नो वो क्या करता है. ठीक है. दिस आर अदर इनबिल्ट मैकेनिज्म, इनबिल्ट प्रॉब्लम्स. ओके. एंड जितना भी फैसिलिटी जो जनरल क्रॉप के लिए दिया गया है, कमर्शियल क्रॉप के दिया गया है, जैसे क्रेडिट है, इंश्योरेंस है, लोन्स है, विच आर नॉट सो इजी फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्योंकि अगर जो भी लोन देने वाला होगा, तो उनको भी वापस पैसे देने के लिए ये सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा वो भी सोचेगा दो बार, जिसकी वजह से वो नहीं भी देगा आपको. ठीक है. और इसके एक सोल्यूशन भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो पोल्ट्री में चलता है. ओके. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री फार्मिंग वट एवर इट इज देयर फॉर द other crops, but not for the organic farming system. Okay. So this contract farming certainly will be useful, provided if some companies come forward. Okay. Few companies are doing, but not in all the states, only in the northeastern states where there is a more scope, Third one is livestock feeding. जैसे शुरुआत में बता रहा था, फॉर द लाइफ ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक फार्मिंग, पहले ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक एग्रीकल्चर भी जाना जरूरी होता है, क्योंकि आपका मेजर इनपुट है फीड है. और रूल भी कहता है, रूल इज क्लियरली सेज दैट मिनिमम ऑफ 30% ड्राई मैटर इनटेक शुड बी फ्रॉम द ग्रेजिंग पैस्चर. ग्रेजिंग पैस्चर मतलब अपने पास ही होना चाहिए वो चीज, आप बाहर से खरीद नहीं सकते. जब ऐसे कंपल्सन आ जाएगा तो नेचुरली आपका मजबूर हो जाएंगे. USD also says that this use of pastures in the organic livestock production is mandatory. अगर आपको एक्सपोर्ट करेंगे तो without this it will not agree. It is an important implication for the livestock sector in tropical countries that where livestock intensification is increasing, being attempted to increase per unit productivity. एक तरफ हमारा एनिमल खुद का ही प्रोडक्टिविटी इतना लेस है, एक तरफ बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. द मोमेंट यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक फार्मिंग, प्रोडक्शन और कम हो जाएगा, विच इज अगेन ए डिस्करेजिंग पॉइंट टू द फार्मर्स. ओके. दूसरा, अगर यदि प्रोड्यूस भी कर लिया, इन द डेवलप कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशन इतना स्ट्रांग है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू cope up with our Indian scenario. Okay. So that's why this problem is not only to India, it is for most of the Asian countries, this problem remains same. Sanitary regulations, when it comes in the from produce, जब प्रोड्यूस आएगा तो अपेडा आएगा, क्योंकि वहां प्रोडक्ट के बाद बात करेंगे. तो वो प्रोडक्ट के लिए वो सारी हिस्ट्री पूछेगा, ट्रेसेबिलिटी पूछेगा, कहां से आया, कैसे खिलाया, कैसे इसको प्रोड्यूस किया, कैसे पैकिंग किया, सारे सैनिटरी में इतना स्ट्रिक्ट है वो. It is very difficult to meet at Indian level by Indian farmers. Even sometimes impossible for the South American countries like Argentina, Brazil. Okay. थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो they will take care of all these minimum regulations and they will try to export for the USA and European countries so that we will lose that opportunity. Traceability, I told you, any product to say is organic, traceability becomes important. Farm to fork. ठीक है. फार्म टू टेबल, these are nothing but traceability. So you will be knowing what you eat, from which farm it is originated. Even KFC है, Domino's है, ठीक है, Pizza Hut है, they are all having typical traceability. Even what sauce you use, what chili flakes do you use, what origami you are going to use, everything traceability they maintain. So that's why that much higher price you will paying in the end. Okay. And that much traceability is really difficult for Indian scenario. And the traceability tools जो होगा उसमें RFI टैग डालना पड़ेगा, आपको डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. That to countries for small farmers it is next to impossible.
तो इसका एडवांटेज सारे डेवलप कंट्रीज उसको ले लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ डिसीज, बहुत सारे हमारा एक्सपोर्ट रुक जाता है बिकॉज ऑफ सम नोटिफाइबल डिसीज, जैसे एफएमडी है, रिफ्ट वैली फीवर है। तो बहुत सारे कंट्रीज में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नेचुरली आपका पहले सील लगाना पड़ेगा, दे आर फ्री फ्रॉम, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे पास रियली डिफिकल्ट टू मेक our animal product free from this. इसलिए even government has to put an effort and it's trying also to create a disease free zones. कुछ स्टेट्स होगा वहां ये डिसीज कम अकरेंस होगा, तो उसी एरिया में कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन करके यू कैन डिक्लेयर दैट दिस इज फ्री फ्रॉम, लेट अस टेक अरुणाचल, मिथुन इज बीइंग रेयर, वहां एफएमडी आउटब्रेक कम होगा। कंटिन्यूस वैक्सीनेशन करने से यू कैन फ्री फ्रॉम दैट state from the free from FMD, and by default those animals are reared organically and that meat can be exported to any Arabian countries as an organic beef. Okay, so like that you have to do it. Okay, so in organic production also the prevention problem is very very difficult, क्योंकि आपको प्रिवेंट करने का, डिसीज करने का, then you have to use so many costly products, क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन जितना भी होगा so naturally वो कॉस्टली होगा, you all know it. Okay, जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है कॉस्टली है कंपेयर टू सिंथेटिक प्रोडक्ट्स. ओके, इवन फॉर ऑर्डिनरी फार्मर्स दो यू विल यूज सम आईटी की इंडिजिनियस नॉलेज, अगर उसे ट्रीट भी करेगा, इफ इट इज नॉट अकाउंटेबल, अगर उसके बारे में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, दो यू आर ट्रीटेड द एनिमल which is not it is not going to be useful, because that has to be qualified, that product which you are going to use for treat your animals may be any herbal product, but that has to be qualified first as per the record, then only you can use, though you have done it. Okay, so this is another problem. Last one is lack of training and certification facility. पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत था, इंडिविजुअली तो आपका फार्म को सर्टिफिकेशन इतना आसान से नहीं मिलता था, ठीक है, और फॉरेन से आपको बुलाना पड़ता था. Nowadays गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेल टेकन केयर एंड इट हैज आइडेंटिफाइड मेनी एजेंसीज बाय आउटसोर्सिंग. ठीक है, कुछ जगह में गवर्नमेंट ही खुद ही पैसा देगा टू सर्टिफाई. इन सम केसेस you yourself can give money and you can get this certification. Okay, but for the products, फार्म के लिए बहुत सारे ये है एजेंसीज है, बट फॉर ए प्रोडक्ट स्टिल मेनी कंपनीज दे डोंट कम फॉरवर्ड बिकॉज दे फील दैट स्टिल आवर फार्मिंग सिस्टम आर नॉट फुल प्रूफ. आप डोमेस्टिक मार्केट में टू से दैट आवर प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक इज परफेक्टली फाइन, ठीक है, क्योंकि आप मेजॉरिटी पॉइंट्स 100% नहीं भी फॉलो किया, 95% भी फॉलो किया, चलो यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो नेचुरली आपको एज ए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करके आप इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बेचे जा सकता है, बट फॉरेन प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर नहीं पाते. दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक्स. नाउ थ्रेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, सेम थिंग है बट कंटेस्ट इज डिफरेंट. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल as we discussed many of the points in the previous slides. Okay, marketing opportunity, क्योंकि जब ऑर्गेनिक फार्मिंग आया है तो फर्स्ट हमारा माइंड में आता है एक्सपोर्ट करने का. द मेन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इन द डेवलपिंग कंट्री फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज इज द आउटसाइड कंट्री, बट nowadays it has developed so much so that they have become self-sufficient to produce the organic products, so they are no more dependent on us, or there is not much demand. Okay, and also meeting the certification requirements for their standards is very difficult. Okay, तो हमारे लिए रिस्क टेकिंग बिजनेस, ठीक है, अगर आपने रिस्क लेके भी एक्सपोर्ट करने के लिए इफ यू हैव प्लान्ड, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके, मेनी टाइम्स इट्स सो हैपन दैट आपने इतना प्रोड्यूस करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में भी डेवलप होगा, यूएस में भी डेवलप, हर जगह डेवलप होगा, द ट्रेड विल बिकम एट पार विद द कन्वेंशनल प्रोडक्ट. ये भी एक रिस्क भी है इसमें. ठीक है, आपने पैसा ज्यादा लगा दिया, बाद में उतना पैसा मिलेगा नहीं, सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. ओके, डिफिकल्ट. ओके, तो एक्सपोर्ट मस्ट हैव assured and certified supply chain, which is again missing here. Large scale commercial farms generally they get success, but in India it's a small scale producers, again it's a difficult. तो यूरोपियन यूनियन have become self sufficient in organic livestock, इसलिए हम लोग फ्यूचर में भी अगर हम सोचेंगे, by the time we produce of their standards they will be self sufficient. Okay, so even many developed countries जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज डाल देते हैं, अभी यूएसए कर रहा है मेनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, अगर आपने प्रोड्यूस भी कर लिया टू देयर क्वालिटी,
अगर उनके पास थोड़ा बहुत डिफिसिट भी होगा, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस दे डू विद द इंपोर्ट। ओके, कोई एडिशनल प्राइस इतना उतना डाल देगा, इतना पैसा बढ़ जाएगा, बाय द टाइम इट रीचेस देयर मार्केट योर प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द गेन। ओके, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। ओके, इन नंबर ऑफ इंस्टेंस इट सो हैपेंस दैट, जैसे मैंने बताया था, डिमांड ज्यादा करके इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फिर बाद में आपको एक ऑर्डिनरी प्राइस में बेचना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू हैपन मेनी टाइम्स, इट इज हैपेंड इन मेनी ऑफ द कंट्रीज। ओके, एक पर्टिकुलर सीजन में इतना प्रोडक्ट आ जाएगा, तो आपको थ्रो अवे प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा। सेकंड इज, एक सम फार्मर्स इन द यूरोपियन, दे गॉट ए लिटिल बिट अप्रेंशन। ठीक है, रैपिड कन्वर्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग सब लोग करते 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 जाएंगे, फिर बाद में कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए डिमांड फिर बढ़ता जाएगा। अगेन इट विल jeopardize the that harmonization. Okay, so that is also a problem. Okay, and risk bearing capacity, as I told you, to the Indian farmers is very very less, so naturally this will happen, and these threats is applicable to each and every country including India. So when there are so many threats, naturally we'll have opportunities. This is only three sides are there, and this last part, when there are threats, naturally they will project as a opportunities. ठीक है, आपको थ्रेट है, फिर भी हमारे लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन है. व्हाट आर दोस? एक्सेलेंट ब्रीड्स ऑफ लाइवस्टॉक हैविंग गुड एडवांटेजेस पोजीशन और एडवांटेजेस कैरेक्टर्स. तो आपको ऑर्गेनिक लाइवस्टॉक फार्मिंग में एनिमल शुड बी डिसीज रेजिस्टेंस, लेस प्रोन फॉर द डिसीजेस, and they are more dependent on the crop residues, and all these advantages will get in the indigenous breeds, which is not so in the European countries, or not so in the USA or any developed countries for that matter. Okay, our traditional practices are having close resemblance in the organic practices.